Assalamu alaikum students. Today we will continue with the chapter organic chemistry. Okay, we have done till nomenclature. Now we will continue with hydrocarbons. First, general properties of hydrocarbons. ठीक है, some general information. Term aliphatic open chain organic compounds. ठीक है, these are aliphatic open chain organic compounds containing carbon and hydrogen only. Okay, these are not cyclic or closed ring systems. ठीक है. Now molecular formula is CXHY where X and Y are whole numbers. ठीक. Main groups aliphatic hydrocarbons are divided into two main groups. First is the saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are the ones that only consist of single bonds. ठीक है, single covalent bonds and example is homologous series of alkanes, methane, ethane, etc. ठीक है. Unsaturated hydrocarbons are the reactive ones that contain pi bond also along with sigma bond, and the homologous series of alkenes and alkynes is its example. Alkenes contain double bond and alkynes contain triple bond. ठीक है. Now we will see some general characteristics of alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes are also known as paraffins. Paraffins means para means little, affins means affinity. So they have very little affinity for other compounds, hence they are termed as paraffins. Okay, why? Because they are already saturated, hence unreactive. Nature saturated hydrocarbon alkenes are also termed as olefins. Olefins are oil forming. ठीक है, जो क्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं एल्कीन्स के थ्रू डेट आर ऑयल. ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है? ऑयली होता है, हेंस दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज ओलिफिन्स और ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स. ठीक. एल्काइंस आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड एज दे कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक. एल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड वाई? बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड. एल्कीन्स कंटेन डबल बॉन्ड. ओके. एल्केन्स कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. एल्कीन्स कंटेन डबल कोवेलेंट बॉन्ड along with the single ones. ठीक है. एल्काइंस कंटेन ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके. Now what do you mean by double and triple covalent bond? Single covalent bond में क्या होता है? Only one pair of electrons is shared between the two carbon atoms. ठीक है. In case of double covalent bond, two pairs of electrons are shared between the two carbon atoms. In case of carbon carbon triple covalent bond, three pairs of electrons are being shared between the two carbon atoms. Okay. Now general formula for alkanes is CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms. For alkenes is CnH2n where again n is the number of carbon atoms, and for alkynes is CnH2n-2. Okay. Now molecular formula निकाल लोगे आप. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखते जाओ, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स आते जाएंगे. ठीक है. फॉर कार्बन अगर हमने n इज इक्वल टू 1 रखा फॉर 1 कार्बन एटम, सो द फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी CH4. 2 into 1 is 2 plus 2 that is 4. CH4 C2H6 and so on. And अब CnH2n is the जनरल मॉलिकुलर फार्मूला फॉर एल्कीन्स. ठीक है. बट इसकी होमोलोगस सीरीज किससे स्टार्ट होती है? 2 कार्बन एटम से. तो n हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ठीक है. तो n कभी 1 नहीं होगा फॉर एल्कीन्स. वाई? क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं. ठीक है. कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा. सो इट्स होमोलोगस सीरीज that is alkenes and alkynes homologous series starts with 2 carbon atoms, that is from ethene and ethine. Okay. Now formula आप देख लो. structural formula, this one is the condensed structural formula CH3 and this one is for ethene, that is alkene का first homologous member is ethene. Ethine is the first homologous member of the alkyne series. ठीक. ethane is the second homolog of the alkyne series. First one is methane. Okay. branched molecular formula is like this, जहाँ पे हम हर बॉन्ड को शो कर रहे हैं. ओके. दिस वन इज फॉर ईथीन एंड दिस वन इज फॉर इथाइन. IUPAC नेम इज ईथेन, कॉमन नेम इज ईथेन. ठीक है. फॉर दिस वन, इसके लिए इथाइन कॉमन नेम इज IUPAC नेम इज ईथीन एंड कॉमन नेम इज इथाइलिन. एंड फॉर इथाइन IUPAC नेम इज इथाइन एंड कॉमन नेम इज एसिटिलीन. ओके. Now the difference between the saturated and the unsaturated organic compounds, example is methane, ethane for saturated and ethene, ethine for unsaturated. ठीक है. स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स, दे कंटेन कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इन केस ऑफ सैचुरेटेड. इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड दे कंटेन कार्बन एटम्स ज्वाइंड आइदर बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल कोवेलेंट बॉन्ड एज इन केस ऑफ इथीन एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एज इन केस ऑफ इथाइन. ठीक. इन saturated organic compounds all the 4 valencies of each carbon atom are satisfied by hydrogen atoms forming single covalent bonds. ठीक है. सैचुरेटेड के केस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई होती हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पे वैलेंसीज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई होती हैं, और जितनी बचती हैं वो हाइड्रोजन से. ठीक है. सिंगल बॉन्ड. अब
In case of saturated organic compound, the non-availability of electrons in the single covalent bond makes them less reactive and therefore undergo characteristic substitution reactions only. ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डेट इज ऑफ सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, लूजली नहीं होते हैं, ठीक है, इस वजह से वो नॉन अवेलेबल होते हैं एंड इस वजह से ही ये सैचुरेटेड कहलाते हैं या अनरिएक्टिव कहलाते हैं और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ही देते हैं सिर्फ। अब अनसैचुरेटेड के केस में देख लो, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अलावा जो बन रहा है वो डैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डैट आर पाई बॉन्ड्स, ठीक। पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड एंड आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इस वजह से ये रिएक्टिव हो जाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हैंस दीज आर मोर रिएक्टिव एंड अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शंस ओनली। जो कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जो है दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो क्या हो जाता है? पाई बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड, ठीक। एक और भी बनेगा तो वो भी पाई बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। इन केस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड इज देयर ओनली, ठीक है। और बाकी वैलेंसीज तो हाइड्रोजन से फिलअप कर दो या अदर एटम से, ठीक। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। तो ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड, ठीक है, एंड अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो इस वजह से एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, डैट मीन्स दे आर रिएक्टिव, ओके। और वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। अभी हम एडिशन रिएक्शन देख लेंगे। अब देखो, इन केस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहला तो सिग्मा ही बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल वाला है, ठीक है। अब उसके अलावा जो 2 और बन रहे हैं डैट आर पाई बॉन्ड्स, ठीक। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इन केस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन जो एक फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड 2 अदर बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में, और बाकी हाइड्रोजन से भर दो, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डेट इज एल्केन्स इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एटम और ग्रुप of atoms by other atom or group, example in alkanes, replacement of hydrogen by chlorine or bromine atoms। अब देखो, जैसे हमने ये ले लिया CH4 प्लस Cl2, ठीक है, दिस वन इज हेलोजन Cl2, ऐसे ना लिख के हम इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? CH3Cl, ठीक, प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने सब्सटीट्यूट कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह से था मीथेन, इस तरह से मीथेन था, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर गया, उसकी जगह आ गया, ठीक। तो दिस वन इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन्स क्या देते हैं? ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ओके। Now what do you mean by addition reaction? That are the characteristic reactions of unsaturated organic compounds. Reactions involving addition of an attacking reagent means small molecule, अभी आप attacking reagent पे ना जाओ, addition of a small molecule, example hydrogen that is H2, halogen Cl2, Br2, I2, F2 across the double or triple bond of an unsaturated compound to yield a saturated product. तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है डैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स एंड डैट इज सैचुरेटेड, ठीक। अब आप इधर देख लो, हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एंड दिस इज ईथीन, ठीक। अब हमने मान लो यहाँ पे हेलोजन इसके अक्रॉस ऐड करा देंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल इज हेलोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? अब 2 बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रेकिंग, आप Cl2 को उठा के यहाँ पे लिख दो, ठीक, ऐसे लिख दो, दिस वन इज Cl2। अब देखो, ये Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक। CH2 के वो सॉरी कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड था, ठीक है, डैट इज बीइंग ब्रेकिंग, ठीक। और 2 न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्मिंग, डैट इज बिटवीन दिस कार्बन एंड क्लोरीन एंड दिस कार्बन एंड क्लोरीन। तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और 2 न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके, इन द रिजल्टेंट कंपाउंड। और आपको क्या मिल जाएगा? CH2Cl एंड दिस वन इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। दिस वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड है कि नहीं है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन, दिस कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स वी विल सी, ठीक है, ऑफ एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस है ना। सो
the hydrogen will get added across this double bond and the resulting compound will be CH3 single bond CH3. ठीक है, this one is ethene. तो इथीन से हमें, इथीन वॉज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इससे हमें मिल गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेट इज इथेन थ्रू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड. और दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन. यहाँ पे देखो बेटा, HCl इज द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल डेट इज बीइंग एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, एक तरफ के कार्बन को वन कार्बन विल गेट H एंड वन कार्बन विल गेट Cl, CH3 CH2 Cl. ओके, दिस वन इज द नेम बता दो इसका. दिस वन इज अगेन सैचुरेटेड, नेम बता दिए बेटा, क्लोरोइथेन. ओके, क्लोरोइथेन इज इट्स नेम. अब इसमें देखिए वाटर इज बीइंग एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. वाटर किस तरह से होता है, HOH. ठीक है, HOH. तो वन कार्बन विल गेट हाइड्रोजन एटम एंड वन कार्बन विल गेट OH. ओके, सो CH3 CH2 OH एंड दिस वन इज इथेनॉल. ठीक है, नाउ वी विल सी डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स वन बाय वन इन डिटेल. ओके, फर्स्ट वन इज एल्केन. नाउ एल्केन्स आपको अभी पता ही है, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके, दे आर टर्म्ड एज पैराफिन्स. वाई पैराफिन्स? बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल एफिनिटी फॉर अदर कंपाउंड्स. ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स. ठीक, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, एल्केन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्शी लैंड्स. वाई और CH4 को मार्श गैस बोलते भी इसी वजह से. ठीक है, एयर एंड कोल माइंस. मेन सोर्सेज, द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट इज मीथेन. पेट्रोलियम का मेन कंपोनेंट इज ऑक्टेन. ठीक है, ऑक्टेन इज अगेन आइसोऑक्टेन. आइसोऑक्टेन इज अगेन एन एल्केन. ठीक है, नेचुरल गैस वो तो हो गया. कंटेन अबाउट 75% मीथेन एंड इज फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम. मार्श गैस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल डिको ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेनिंग मीथेन. ठीक है, मार्श गैस मीथेन हो इज कॉल्ड मार्श गैस. फायर डैम्प में भी कोल पॉकेट्स कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन एंड आर कॉल्ड फायर डैम्प. ठीक है, अब ये सब इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक, बस ये याद रखना कि मार्श गैस इज कॉल्ड मीथेन. ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपको पता है. देयर आर टू मेन वेज ऑफ नेमिंग एल्केन्स, या तो फिर कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम होता है और IUPAC सिस्टम. ठीक है, कॉमन ट्रिवियल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बस आपको जो मेन है, जैसे मीथेन इज टर्म्ड एज मार्श गैस, बस मीथेन का ही इसमें याद रखना है. एल्कीन्स एल्काइंस का भी फिर बताएंगे. ओके, नाउ IUPAC सिस्टम, दिस सिस्टम retains the common names for the first 10 alkanes, that is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. ठीक, सो वर्ड रूट क्या हो जाता है, कॉमन नेम इज एल्केन. ठीक है, एल किससे रिप्लेस हो जाता है, वन कार्बन इज देयर देन मेथ, टू कार्बन एथ, थ्री प्रॉप, फोर ब्यूट, फाइव पेंटेन, अप टिल 5 कार्बन एटम्स ओनली. द नॉमेनक्लेचर इज इन योर सिलेबस. ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन इज दिस. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी आप बना चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन that in chemical bonding methane contain 4 single bonds. ठीक है, 4 single bonds. Now preparation of methane and ethane. ठीक है, lab preparation from sodium ethanoate or sodium acetate. Sodium acetate, this CH3CO Na is sodium acetate or sodium ethanoate. Okay, plus NaOH, soda lime लिया. calcium oxide is merely acting as a drying agent here. Why? Because NaOH is deliquescent. NaOH deliquescent होता है, क्या कर लेता है, moisture absorb करके state change कर लेता है. ठीक है, सो डैट्स वाई कैल्शियम ऑक्साइड इज़ बीइंग यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट. ठीक है, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, NaOH को डैमेज नहीं होने देगा. ठीक, एंड अब इसमें क्या जा रहा है बेटा, Na2CO3. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज अ बाई प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट इज द मीथेन गैस. ओके, नाउ सोडियम प्रोपियोनेट और सोडियम प्रोपेनोएट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन. ठीक, तो अब यहाँ पे देखो चेन डिग्रेडेशन हो रहा है. अगर हमें वन कार्बन हाइड्रोकार्बन चाहिए तो हम 2 कार्बन्स का सॉल्ट लेंगे. 2 कार्बन्स का चाहिए तो 3 कार्बन का सॉल्ट लेंगे. ओके, सो दिस वन इज सोडियम प्रोपियोनेट और सोडियम प्रोपेनोएट. ओके, अब इससे आपको बनाना है क्या, हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेट इज इथेन. ठीक है, दिस मॉलिक्यूल विल बी द बाई प्रोडक्ट. ठीक है, CH3 will be the main product, that is ethane, C2H6 or CH3CH3. ठीक है, ethane is the main product and Na2CO3 sodium carbonate is the byproduct. Calcium oxide is used as a drying agent. Okay, and this is sodium propionate. ठीक, अब देखो
Procedure: the reactants are heated in a hard glass test tube. Soda lime is used in preference to NaOH. Soda lime means NaOH and calcium oxide का mixture, since it is not deliquescent and does not attack glass. ठीक है. प्रोडक्ट मीथेन और इथेन गैस रिस्पेक्टिवली. कलेक्शन कैसे हो रहा है? थ्रू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक, मीथेन इथेन क्या है बेटा? मीथेन इथेन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है. दिस आर ऑर्गेनिक गैसेस और वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं, इस वजह से इनको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू हम कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है. देखो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिमूव हो रहा है. CO2 इज बीइंग रिमूव. ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है. ओके, नाउ जनरल मेथड्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. आयोडोमीथेन और मिथाइल आयोडाइड ले लिया. आयोडोमीथेन और मिथाइल आयोडाइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन्स आर द हाइड्रोजन्स डेट आर ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिव. ठीक है, इनको इन C2 ही जनरेट करते हैं, रिएक्शन मीडियम में ही जनरेट करते हैं और वहीं पे रिएक्ट हो जाते हैं ये. ठीक है, सो CH3I + 2H विल गिव CH4 + HI. ठीक, नाउ ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड्स. अगेन हम ब्रोमो इथेन ले रहे हैं तो हमें मिल जाएगा इथेन. ठीक, मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ले रहे हैं तो इथेन मिल जाएगा. अब ये वाला वुड्स रिएक्शन है, यहाँ पे कपलिंग हो जाती है CH3. अगर सोडियम ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो दिस वन इज वुड्स रिएक्शन. ठीक है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि यहाँ कपलिंग हो रही है, डबल हो जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह से हो जाता है. तो हमें यहाँ मिथाइल आयोडाइड से मिल गया इथेन. ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेपर डेंसिटी बस याद रख लेना. नेचर, कलर एंड ओडर. दीज आर गैसेज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, कलरलेस एंड ओडरलेस. डोंट हैव एनी ओडर और कलर. ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक ना, नॉन पोलर है. वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक, पता है. ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एग्जाम्पल इज एसीटोन. ठीक, नाउ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. वेरी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये क्या है? गैसेज है ना. ठीक है, नाउ अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है गैसेज के लिए? मेल्टिंग पॉइंट वो हो जाता है जैसे सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है? जब सॉलिड क्या बन जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, वैसे ही गैसेज के लिए भी मेल्टिंग पॉइंट होता है व्हेन गैसेज टर्न्स इनटू लिक्विड. तो लिक्विफैक्शन का जो पॉइंट होता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एसीटोन बता देते हैं क्या है. एसीटोन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वेल नोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस वन इज एसीटोन. ठीक है, अब वेपर डेंसिटीज ऑफ मीथेन एंड इथेन. वेपर डेंसिटी आपको पता है, वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज 16, हैंस वेपर डेंसिटी विल बी 8 एंड दैट ऑफ इथेन इज 30. मॉलिक्यूलर वेट इज 30, सो वेपर डेंसिटी विल बी 15. एल्केन्स, मीथेन, इथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन. सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, और इसमें आपका क्लोरीनेशन ही है सिलेबस में. ठीक है, मीथेन क्लोरीनेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन बाय क्लोरीन एटम्स. ठीक है, सो मीथेन एंड इथेन अंडरगो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट और हीट, एनीथिंग. ठीक है, और यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं. यहाँ अनलेस एंड अनटिल कंट्रोल्ड रिएक्शंस हो रहा है तभी मिलते हैं, नहीं तो बेटा ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन और क्लोरीन एटम्स. ठीक है, CH4 + Cl2 4 स्टेजेस में मिलेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज मोनोक्लोरोमीथेन, देन अगेन Cl2 will react with monochloromethane and lead to the formation of dichloromethane and HCl. Again another Cl2 molecule will react with the dichloromethane and lead to the formation of trichloromethane and HCl. फिर रिएक्शन होगा एंड द लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, दिस वन is CHCl3 is trichloromethane and it is generally termed as chloroform. Chloroform is a well known anesthetic. Okay, now इथेन का भी यही हो जाएगा. ठीक है, हेक्साक्लोरोइथेन इज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, all hydrocarbons burn in excess of air to produce carbon dioxide, water and heat. Why? Because these are exothermic reactions. ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबस्शन हो रहा है तो हमेशा प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है या इनसफिशिएंट एयर अगर मेंशन हो तभी, इनसफिशिएंट के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. ठीक है,
और वेरी लेस या वेरी लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, तब क्या बनता है, कार्बन सूट इज द मेजर प्रोडक्ट, डेट इज कार्बन, ठीक है, सिर्फ कार्बन, कार्बन ब्लैक और कार्बन सूट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक, दिस वन, ठीक है, वेरी लिमिटेड सप्लाई। तो अगर लिमिटेड या वेरी लिमिटेड सप्लाई लिखा हो तब तो आप ये प्रोडक्ट्स दोगे, नहीं तो ऑक्सीडेशन, बर्निंग या कुछ भी दिया हो, ठीक है, देन द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, अलॉन्ग विद हीट इज बीइंग रिलीज, वाई, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, दीज रिएक्शंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन आर यूज्ड एज इल्यूमिनेंट एंड डोमेस्टिक फ्यूल in the form of natural gas or gobar gas. Hydrocarbons have very high calorific value. They are easily combustible and the reaction is exothermic, releasing heat energy. Heat energy huge amount में release करते हैं, ठीक है, they have very high calorific value. Hence they are excellent fuels. In manufacture of chemicals, chloroform is used as in anesthesia, ठीक है, solvent for rubber waxes. Carbon black, a black pigment in shoe polishes, printer ink, काजल. फॉर्मल्डिहाइड एंड एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस. फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन में भी ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज मीथेन ओनली, ठीक है, मीथेन का ही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो पहले मिलेगा मीथेनॉल, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दिस वन इज मीथेन, ये मीथेन है, इसको ऑक्सीडेशन कराया हमें मिल जाएगा CH3OH, और मीथेनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, डेट इज HCHO, ठीक है, दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह से दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सो फॉर्मल्डिहाइड इज यूज फॉर इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स. Methanol is solvent for varnishes, antifreeze for automobiles. Antifreeze means freezing point लो कर देता है, ठीक है, और लो कर देता है, माइनस में कर देता है अगर हम ये मिथेनॉल मिक्स कर देंगे किसके साथ, वाटर के साथ. इथेनॉल solvent for resins, a low freezing liquids in thermometers.